Hey guys, what's up? This is a general reading for people जो no contact situation में हैं या separation में हैं. So it may or may not resonate. To book a personal session, you can DM me on Instagram. So we have here three cards. Four of Cups है, Emperor है, Two of Wands है. I feel with the Two of Wands, this person has emotionally hurt you with impulsive words that he uttered or she uttered. गुस्से में इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपको बोली हैं जिसके बारे में वो सोच भी रहे हैं अभी. But he's also turning his back on you or her back on you. This could be you or your person, and we might be dealing with a fire sign possibly. But this person is not thinking about उन्होंने क्या कहा आपसे, क्यों कहा, and they are sticking to whatever they said as they think that it is right. Emotionally काफ़ी hurt हुआ है. Emperor card tells me that ये बहुत stubborn energy में है ये इंसान, egoistic भी है, and this person might be very difficult to convince कि इन्होंने आपको hurt किया है. So I also feel it's not worth telling this person your feelings as well. फोर ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बताता है दैट दिस पर्सन माइट डिनाई एनीथिंग कि खुद पे काम नहीं करना है, खुद के इमोशंस को सॉर्ट नहीं करना है, समथिंग लाइक दैट. बट अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ने अपनी इमेज इस तरीके से बनाई थी दैट दिस पर्सन इज सो स्वीट एंड सो नाइस एंड एवरीथिंग, बट दिस पर्सन वॉज नॉट. फोर ऑफ कप्स है, राहु है, तो ये पर्सन ने आपको काफी गुमराह करके रखा था. एंड नाउ यू नो द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन दैट दिस पर्सन वॉज वेरी सेल्फिश एंड थिंकिंग जस्ट अबाउट हिम और हर सेल्फ. रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए. वी हैव थ्री मोर कार्ड्स हियर. वी हैव 10 of wands, we have 6 of pentacles and the death card. Now 10 of wands tells me that this person is holding on to whatever they said very tightly. They are not open and understanding towards what they said is wrong. तो ये सारी चीज़ों को वो पकड़ के चल रहे हैं, उन्हें नहीं लगता वो गलत है, एंड दे विल बी होल्डिंग ऑन टू देयर ईगो. वो एडमिट नहीं करेंगे कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, बिकॉज अगेन एज आई सेड ईगो है. Along with that, I do feel very strongly this could be a fire sign people, ascendant, rising moon. तो उसके अलावा 6 of Pentacles also tells me कि ये वन वे रोड भी रहा होगा आपके लिए. एम्परर के साथ जो 4 of Cups था उसके वजह से भी मुझे लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस इंसान में, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली इज वेल, एंड आपने काफ़ी दिया है इस इंसान को. तो जहाँ पे सिर्फ आपने दिया है बट लेने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं था, ही और शी डिड नॉट गिव एज मच or invested in you. Death card also tells me that there is a very slight possibility कि ये reignite होगा, because this is something that is going to end in your life. And also this entire thing looks very karmic to me as well, कि there is the cycle that has ended for you. काफ़ी टाइम तक आप इन चीज़ों से डील कर रहे थे, ये अभी का नहीं है, काफ़ी टाइम से ये हो रहा था आपके साथ, which you were not able to realize. I also feel with the death card that you should embrace this change. You should be thankful that it did not work out, because it's a very toxic energy of this person. It could be anyone, it could be a girl, guy, whoever. But along with that, I also feel that ये person ना अपने changes को भी embrace करता है, so that is what you should also do. आपने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को जाने भी दिया है इस इंसान की वजह से, बिकॉज ही और शी माइट नॉट लाइक इट, और दे आर वेरी इम्पल्सिव और पजेसिव अबाउट यू, कंट्रोलिंग, जिसकी वजह से आपने काफ़ी चीज़ें नहीं की लाइफ में, एंड हिज और हर एनर्जी वॉज ऑल्सो क्वाइट ड्रेनिंग. तो आपका खुद का मन नहीं किया होगा काम करने. Page of Wands here tells me that this person is actually very mature, and you might be also dealing with someone very immature female basically, ठीक है. But I also feel कि ये इंसान काफ़ी moody भी रहा होगा, dramatic रहा होगा. Along with that, this also tells me that you need to gather your courage and strength and get past this person, get over this. दिस पर्सन हैज मेड यू फील वेरी गिल्टी, एंड जैसे ये आपका लॉस है कि आप दोनों साथ में नहीं है, एंड आप काफ़ी गिल्ट में थे भी बहुत टाइम तक. काफ़ी टाइम आपने ये भी सोचा कि रिकनसाइल कर लेंगे, होप्स में थे आप, बट वो नहीं हो पाया. सो स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो टेल्स मी दैट. I also feel that this person faked being strong and happy in front of you as well to make you feel bad. इट्स ऑल्सो, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों का भ्रम टूट गया है, सच्चाई सामने आ गई है, एंड इट्स ऑल्सो अ बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट वॉट यू हैव अंडरस्टूड एंड डिस्कवर्ड अबाउट दिस पर्सन लेटली. Along with that, we have 5 of Pentacles. As I said earlier, आपने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ गिव अप किया है इनके लिए. फाइनेंशियली भी काफ़ी ब्लॉक्ड रहे हो आप while this person was in your life. काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपने जो छोड़ी हैं वो इन लोगों के लिए भी छोड़ी है, so that they don't feel less in their energy with you in this relationship.
बट अलॉन्ग विद दैट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट टेल्स मी दैट ये इंसान की एनर्जी ऐसी थी कि आपका मन ही नहीं किया होगा काम करने का। कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ब्लॉकेज दिख रही है। यू माइट हैव थॉट कि ये इंसान सब कुछ कम्युनिकेट करता है या करती है आपके साथ, बट they were just looking like they are wise, but they were not. Some of you might also be blocked on social media as well. थ्री ऑफ वॉन्स जो साथ में आया है इस कार्ड में, इस रीडिंग में, यहाँ पे ये बताता है दैट दिस पर्सन हैज कम्प्लीटली टर्न अवे फ्रॉम यू एंड इज ओनली थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, एंड उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो चाहते हैं आप समझ के लीजिए, बट यू नीड टू ऑल्सो नॉट एक्ट वेरी स्टबर्न विद दिस एंटायर रिलेशनशिप। अगर नहीं हो रहा है तो फोर्स मत करो इसको काम करने के लिए। along with that this person also thinks that this person knows better than you, तो आप चुप ही रहोगे तो ही अच्छा है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। तो मुझे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था, तो यही लगता है कि इसके थॉट्स ये इंसान के प्रैक्टिकल नहीं है, मेच्योर नहीं है। गुड रिटर्न्स, राइट? सो इफ यू लाइक द वीडियो you can like, share, comment below and subscribe to my channel and DM me for a personal session. Thank you.